نیوز بلیٹن کے آغاز میں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ جنوبی پنجاب کی پولیس کمان کے بعد انتظامیہ میں بھی بڑے پیمانے پر ردوبدل آر پی اوز ڈی پی اوز کے تبادلوں کے احکامات کے بعد متعدد اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز بھی تبدیل کر دیے گئے۔ خانیوال، بھکر، خوشاب، لیا، کوٹدو، راجن پور، وہاڑی میں نئے ڈیپٹی کمشنر تعینات نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر ردوبدل۔ ڈیپٹی کمشنر خانیوال سلمہ سلیمان تبدیل، ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ملیحہ راشد کو ڈی سی خانیوال تعینات کر دیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم احسان علی جمالی نے نئے ڈی سی بھکر تعینات۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن جہازب حسین کو ڈی سی خوشاب لگا دیا گیا۔ ڈی سی راجن پور شفقت اللہ مشتاق بھی تبدیل، ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم عمران حسین رانجھا نئے ڈی سی راجن پور تعینات کر دیے گئے۔ ڈیپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کو بھی خالد جاوید گرائیا کو ڈیپٹی کمشنر وہاڑی تعینات کر دیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر کوٹدو منور عباس بخاری کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ وائس کمشنر پی سی توقیر الیاس چیمہ ڈی سی کوٹدو تعینات۔ ڈی سی لیا امیرہ بیدار تبدیل، ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ آصف علی ڈیپٹی کمشنر لیا تعینات نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ناظرین، ملتان پولیس کی 24 گھنٹوں کی ریکارڈ کارکردگی، بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے 832 چالان، 6,40,700 جرمانہ کیا گیا۔ ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 1,236 چالان جبکہ 26,78,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ ملتان ٹریفک پولیس کی 24 گھنٹوں کی ریکارڈ کارکردگی سامنے آ گئی ہے۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے 832 چالان، 6,40,000 روپے جرمانہ، غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے 456 چالان، 1,39,000 روپے جرمانہ۔ حسن ملک اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی حسن۔ جی، پنجاب بھر کی طرح اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں بھی قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے سخت پیرامیٹر اپنایا جا رہا ہے، اور جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوانین پر امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے تو ان تمام کے خلاف مسلسل سٹی ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے۔ اور جس طریقے سے پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے، سیم اسی طریقے سے ملتان میں بھی شہریوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، اور شہریوں کے خلاف جو قوانین کو توڑ رہے ہیں یا قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اگر ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹے کی سٹی ٹریفک پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً مجموعی طور پر 8,000 سے زائد چالان کیے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اگر جرمانوں کی بات کی جائے تو تقریباً 60 لاکھ سے زائد مالیت کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ تو اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی طور پر مقصد تو قوانین کی امپلیمنٹیشن کروانے ہیں، لیکن کیا آیا اب بھی لوگ قوانین کو بریک کر رہے ہیں؟ ہیلمٹ، جس طریقے سے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، تو آئدر ابھی بھی شہری قوانین پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں، اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پوائنٹ انچارج عبدالسلام صاحب موجود ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے پنجاب بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، رات کے اس پہر آپ بھی سڑکوں پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی تھینک یو، مہربانی آپ کی کہ آپ نے بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور سر بھرپور کارروائی جاری ہے، اور یہ عوام کی حفاظت کے لیے ہے، اس کا اور کوئی موٹیو نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے آئی جی صاحب، ہمارے سی ٹی او صاحب، ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ، ان سب کا ایک ہی ہے کہ ہاں بھئی حادثات کی شرح کم سے کم ہو۔ یہ اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، یہ صرف ہماری چھوٹی سی غفلت ہے۔ ہیلمٹ نہ پہننا، یہ کوئی بات ہے جی؟ ہیلمٹ نہیں پہننا، ہیلمٹ پہنیں، اپنی جانوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پہ رکھ کے یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلے ہیں اور ہم روزمرہ کے کام کاج میں ہمارے بچے نکلے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے گھر کوئی ایسی خبر جائے کہ حادثہ ہوا اور سر میں چوٹ لگی اور کوئی اس طرح کی۔ صرف یہی ہے کہ اپنے خدا را سب سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو خود ہیلمٹ کا استعمال کریں، سیٹ بیلٹ باندھیں، ٹریفک کے جو بھی رولز ہیں ان پہ عمل کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا خاص نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رات کی سردی ہے، اس ٹائم اس پہر ہم مکمل الرٹ پوزیشن میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور
हमारे सिर्फ मकसद यही है कि आवाम घरों से आई है, ये हिफाजत के साथ महफूज तरीके से अपने घरों को वापसी पहुंच जाए। सर, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो उन लोगों को, उन शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर, उनके लिए सख्त अहकामात हैं और सख्त क्रैकडाउन जारी है। FIRs हो रही हैं, हैवी फाइन्स, जिनको वो फाइन्स को देख के एक मरतबा सोचते हैं ये हमारे साथ हुआ क्या है, कि भाई आपको इतनी वार्निंग दी है, इतना आपको आगाही मुहिम चलाई, उसके बावजूद आप अमल नहीं कर रहे। तो हमारे पास उसके हुकूमत ने बहुत अच्छे लॉज बनाए हैं, FIRs हो रही हैं, हैवी फाइन्स हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो चंद % लोग आपको नजर आ रहे हैं वायलेशन करते हुए, इस मुहिम के साथ इंशाल्लाह एक दो दिनों में ये भी जीरो हो जाएगा। हम पुरुमीद हैं और हम हौसले के साथ इंशाल्लाह मौजूद हैं। यकीनन सिटी ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर इस अज़म का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है कि ये बुनियादी तौर पर जितने भी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि शहरियों को तंग किया जाए या शहरियों से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इसका बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ ये है कि जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं या जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और या जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है, और अल्लाह ना करे अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो जिंदगी भर की माजूरी या जिंदगी भर वो किसी भी इस हालत में आ जाते हैं कि वो शायद फिर कोई काम करने के काबिल नहीं रहते। तो ये बुनियादी तौर पर सख्ती और ये जितने पैरामीटर्स अपनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि शहरियों की जान और माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे अवलीन बनाया जा सके। और जितने ये FIRs लॉन्च की जा रही हैं, जितने लोगों को जुर्माने किए जा रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि शाहरात को महफूज से महफूज तर बनाया जा सके। जी हसन, तफसीलन आगाह करने का शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के 456 चालान किए गए हैं। 1,39,000 रुपए जुर्माना किया गया है। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की 24 घंटों की रिकॉर्ड कारकर्दगी, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के 800 चालान, 6,40,000 रुपए का जुर्माना। गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के 456 चालान, 1,39,000 रुपए जुर्माना। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 1,236 चालान, 26,78,000 रुपए जुर्माना। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को 8,773 चालान जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भावलपुर पुलिस की भरपूर कार्रवाइयां, 3,126 चालान और 1,267 मुकदमा दर्ज किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 40 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,126 चालान, 1,267 मुकदमा दर्ज किए गए। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 40 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए जा चुके हैं। बगैर हेलमेट 1,650, मोटरसाइकिल सवारों के चालान 745 मुकदमा दर्ज, 319 मोटरसाइकिल बंद की गई, 33 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बगैर लाइसेंस के 868 चालान, 446 मुकदमा दर्ज, 201 गाड़ियां बंद। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 226 चालान, 59 मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद, 11 मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, डेरा गाजी खान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। LPG का सरकारी निर्ख 208 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्गर मार्केट में 300 से 320 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। सर्द मौसम में गैस की बढ़ती कीमतों पर शहरी शदीद परेशान। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। डेरा गाजी खान में LPG की बढ़ती कीमत ने एक बार फिर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के दावे तो करती है, मगर अमली तौर पर सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है। LPG के सरकारी नर्ख 208 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं, लेकिन आम मार्केट में 300 से 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। LPG के अलावा आप जिस फील्ड में भी जाएंगे, कोई चीज खरीदने शहर जाएंगे तो वो आपकी अप्रोच से बाहर होगी। कल तक आप जो चीज 10 रुपए की लेते थे वो आज 20 की हो चुकी है। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि प्लांट से महंगे दामों गैस खरीद कर सस्ती फरोख्त करना मुमकिन नहीं। सारे बहुत परेशान है। ये जेड़ा रेट साकू पिछू प्लांट के लिए मिलते या उन्हें को पिछू जेड़ा भी रेट मिलते अला बेहतर जान दे, लेकिन सारा रेट यूं जाती गए डेली का डेली रेट बदलता पे, डेली घटता पे। साकू कोई समझ नहीं भी, असा गाहक को भी कवर नहीं कर सकते, गाहक भी परेशान होंगे।
शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। सब्जी और फलों के सरकारी निर्खों में मामूली कमी मगर मार्केट में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल ना हो सका। नाजायज मुनाफाखोर माफिया कीमतें कम करने को तैयार नहीं, जबकि इंतजामिया ने इस मामले पर चुप साध रखी है। सरकारी निर्खों में टमाटर 70, प्याज 72 और आलू 58 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में टमाटर 100, प्याज और आलू 100 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में बंद गोभी 116, गाजर 70, चुकंदर 80 और पालक 26 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में बंद गोभी 160, गाजर 90, पालक 70 और चुकंदर 120 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में सुहांजना 300, अदरक 350 और लहसुन 450 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी निर्खों में अंगूर 750, सेब 300 और कंधारी अनार 500 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अंगूर 900, अनार 650 और सेब 350 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 342, गंडेरी 70, अमरूद लाड़काना 192, मुसम्मी 60 रुपए फी किलो मुकर्रर। शकरकंदी 150 और जापानी फल 350 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। सरकारी नेकनामे के मुताबिक चिकन 446 रुपए फी किलो और अंडे 329 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि लोग सस्ती अशिया खुरोनोश खरीद सकें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। स्मॉग के रोग ने आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। मुल्तान में फिजाई आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहर की फिजा आलूदा होने से वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा। अस्पतालों में स्मॉग मुतासरा मरीजों के रिपोर्ट होने का सिलसिला भी जारी। मुल्तान में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज खतरनाक हद से ऊपर रहा। दोपहर 12 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हदायत की है कि स्मोक की सूरत हाल में बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी बाहर ना निकलें। दोपहर 3 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ कम होकर 185 पॉइंट पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियों और कचरा जलाना आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला जहरीला धुआं भी स्मोक में इजाफे का सबब बनने लगा। शाम 5 बजे शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बायस स्मोक की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान के वकला भी बिहाड़ी में मुबैना मुकाबले में वकील की हलाकत पर सरापा एहतजाज। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला की हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरा। वकला की अदालतों में पेश न होने से साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। वकला रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को फौरी गिरफ्तार और DPO बिहाड़ी को मुअत्तल किया जाए। मुल्तान की वकला बरादरी का बिहाड़ी में वकील की मुबैना मुकाबले में हलाकत पर शदीद गम गुस्से का इजहार। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। वकला अदालतों में पेश ना हुए, जिसके बायस मुतअद्दिद केसेस की समाअत मुअख्खर हुई और साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। वकला का कहना था कि एडवोकेट ज़िशान शबीर डुड्डी को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इंसानियत का कत्ल है, तो हम इसको रायगा इनका खून नहीं जाने देंगे। हम ये पुलिस को बावर कराना चाह रहे हैं। जो ये प्ली ले रहे हैं, झूठी प्ली, ये साबित ही नहीं कर सकते, ये हमें फेस ही नहीं कर सकते क्योंकि ये झूठे हैं। अब देखें, बेसिक आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, सिक्योरिटी टू लाइफ, इन्होंने हमारे से क्या हर अवाम से जीने का हक ही छीन लिया है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स ही छीन लिया है। तो ऐसा नहीं होने देंगे। जी ज़िशान शबीर डुड्डी का कत्ल नहीं है, ये तमाम वकला का कत्ल है। उसके साथ ज्यादती हुई है। जब तक मुलजम गिरफ्तार नहीं होते उस तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और हड़तालें वगैरह करते रहेंगे और मुलजमान के गिरफ्तारी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार में एहतजाजी मुजाहरा भी किया, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार जवेद अली डोगर, जनरल सेक्रेटरी मलिक अदनान अहमद, मेंबरान पंजाब बार चौधरी सईद अहमद, मालिक खान लंगा और साबिक मेंबर दाऊद वैंस समेत बड़ी तादाद में वकला शरीक हुए। एहतजाजी वकला का कहना था कि इस वाक़े ने पूरी वकला बरादरी को सदमे में दुचार कर दिया है। हमारे भाई ज़िशान डुड्डी साहब को का नाहक इन्होंने कत्ल किया है, जानबूझकर उसे कत्ल किया गया है। हम उसकी परजोर मजम्मत करते हैं और हम IG पंजाब को ये
यंग वकला एक एहतजाज के तौर पर बताना चाहते हैं, अगर आपने अपने रवैये में तब्दीली ना की, अगर आपने ये हरकत जिस तरह की है, फिलफोर्द SHO को मुअत्तल ना किया, DPO को मुअत्तल ना किया, SHO को गिरफ्तार ना किया, तो इंशाल्लाह ये जो यंग वकला हैं पूरे पाकिस्तान में हड़ताल काल देंगे और इंशाल्लाह हम एहतजाज को बढ़ाएंगे। मेरा ये मुतालबा है कि JIT बनाई जाए और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और DPO विहाड़ी को फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। वकला रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि कातिल में मुलविस पुलिस एहलकारों को फौरी गिरफ्तार और DPO विहाड़ी को मुअत्तल किया जाए। अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो रिएक्शन मजीद सख्त होगा। वकला ने ऐलान किया कि ज़ीशान डुड्डी के कातिलों को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज़, मुल्तान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का रेस्क्यू ऑपरेशन अदम तवज्जो या गफलत का शिकार भीख मांगते कचरा चुनते 2 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों में 7 साला सरफराज, 7 साला इस्माइल शामिल। बच्चों को नॉर्दर्न बाईपास रोड से हिफाजती तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। खसरा और रूबेला से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक 99% हदफ हासिल कर लिया गया। 7,11,000 के मुकर्रर हदफ में से 7,05,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर सोबान ज़िया ने मुहिम की कामयाबी को फील्ड टीम्स की मेहनत और वालिदैन के ताउन का नतीजा करार दिया। खसरा और रूबेला की बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक मुहिम के दौरान 99% हदफ हासिल कर लिया गया। जिला भर में 7,11,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ रखा गया था, जबकि मुहिम के एहतिताम तक 7,05,000 बच्चों को हिफाजती टीके पिलाए गए। हेल्थ टीमों ने घर घर जाकर वालिदैन और बच्चों तक रसाई यकीनी बनाई। हमने अपना 98% टारगेट अचीव कर लिया है। 7,11,000 हमारा टारगेट था, हम इसको 98% अचीव कर चुके हैं। टीमें हमारी अभी भी जो है फील्ड में मौजूद हैं और हम पूरा उम्मीद है कि हम अपना 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर सुबान ज़िया का कहना है कि मुहिम की कामयाबी टीम वर्क और वालिदैन के ताउन से मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा कि हेल्थ अथॉरिटी ने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की और बीमारियों से बचाव के लिए आगाही भी फराहम की। हमारी मुल्तान टीम का एक ही मोटिव है कि हमारे बच्चे जो हैं सेहतमंद होंगे तो एक सेहतमंद कौम हम बन सकते हैं। तो हम इसी मोटिव पे हम कारआमद है और हम इसको 100% इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसरा और रूबेला मुहिम 14 रोज बाद कामयाबी से अख्तिताम पजीर हो गई। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। DG एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्टा का अहम तकर्री का फैसला। तसव्वुर अब्बास बोसाल को डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन भक्कर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। तसव्वुर अब्बास बोसाल डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इजाफी जिम्मेदारी देने का मकसद भक्कर में जारी केसेस और कार्रवाइयों की निगरानी मजीद मौसर बनाना है। DG एंटी करप्शन की हिदायत पर तमाम इस्लामी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इंतजामी तब्दीलियां जारी हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्टा का अहम तकर्री का फैसला। मुल्तान में शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। कमिश्नर आमिर करीम खान का वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर का तमाम डिविजनल डेप्यूटी कमिश्नर्स को वन डिश एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कमिश्नर का जिला इंतजामिया को आज रात से क्रैकडाउन करने का हुक्म। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर मैरिज हॉल को सील करने का हुक्म। कहा थानों की सतह पर शादी की तकरीबात की कवानीन पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। सरकारी औकात, वन डिश और लाउड म्यूजिक पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुकर्ररा वक्त के बाद जारी रहने वाली शादी तकरीबात पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए।